Hello dear students, I welcome all of you to my YouTube channel Oasis Classes. This is Nandan Singh. Today we are going to understand a very important chapter of the grammar, that is transformation. Many of you may have studied while I was taking your class, but many of you may have missed the class as well. So today when I start this chapter, what you have to do, you have to be really very serious, very attentive and very careful of all those things which I teach you, and you have to be in a very high alert to understand all those things. It is not so that those things which we are going to understand today is very difficult, but it is little bit ticklish, because many of you have not studied all these things in 9th, 10th or 11th. You may have studied voice, you may have studied narration, you may have studied tense and different other chapters as well. But understanding removal of to, understanding interchanging of the sentences, understanding degree, all these things are a little bit new sections for some of the students. So what I told you earlier is that you have to be very attentive, very careful while understanding the whole lecture, and I hope that you will do the same. So let us start today's class. As I have written here, transformation. There are so many other chapters in transformations. I don't say that only these chapters has to be studied, but you have to understand one thing, that your syllabus covers only these three chapters in transformation section. All these three chapters are removal of to, degree, interchanging of the sentences. When I start teaching you these chapters, you will yourself understand what these chapters are all about. So you do not have to be panicked, you do not have to be worried, you do not have to be anxious about all these things. You have to learn all these things while I am teaching you. So today I am going to start this one. As I told you earlier that many of you have studied removal of to. You may have forgotten or you may have missed that lecture when I taught you this chapter. So it will be a refreshment for you. It will be a revision for you to understand this chapter as well. So first of all, today we have to understand removal of to. Thereafter, there will be two classes of removal of to, today and the next lecture. There will be two classes of degree as well. It might be wrapped up in only one class, but it might take your one extra class as well. So I am counting this one in two classes. Two classes for removal of to, two classes for degree and two classes for interchanging of the sentences. As I told you earlier, जैसा मैंने आपसे पहले भी कहा कि अभी मैं बोलूँगी इंटरचेंजिंग ऑफ द सेंटेंसेस या डिग्री, ये सारी चीजें अगर मैं अभी बताने लगूँ तो रिमूवल ऑफ टू आपके लिए कंफ्यूजिंग हो जाएगा. तो जो चैप्टर हम जब पढ़ेंगे उस समय उसको डिटेल में समझेंगे कि है क्या ये चीज. तो आज हम लोग रिमूवल ऑफ टू को स्टडी कर रहे हैं, तो मुझे पूरा विश्वास है आप बड़े ध्यान से इस चैप्टर को सुनोगे और बड़े गहरे, क्योंकि आज दो सेक्शन हो रहे, छोटा सेक्शन में ले रहा हूँ क्योंकि स्टार्ट किया है. अगर आज ही मैंने कई सेक्शंस को ले लिया होता तो ये आप में से कई लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो जाता समझना. तो रिमूवल ऑफ टू को कई अलग अलग तरीके से लिखा या बोला जाता है और उसके अलग अलग भाव भी होते हैं. जैसा कि इस चैप्टर के नाम से ही आपको लग रहा है, इसका नाम क्या है, रिमूवल ऑफ टू. रिमूवल, रिमूव मतलब होता है हटाना, मिटाना. तो रिमूवल ऑफ टू, TOO2, किसको हटाना है, TOO2 को. एकदम इसका टारगेट है कि टू को हटाओ. इस चैप्टर का नाम ही है रिमूवल ऑफ टू. तो मैंने आज जैसा pहले आपसे कहा था कि दो सेक्शंस लिए हैं, उन दो सेक्शंस को आपको स्टडी करना है आज के दिन. तो देखते हैं क्या क्या है वो सारे. डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं आपको फिर से एक बात दोहरा दूं कि इसमें अलग अलग वेराइटी रहेगी, 4-5 तरह की वेराइटी रहेगी रिमूवल ऑफ टू में, और सबको अलग अलग ढंग से बनाना. इसलिए मैंने दो क्लास की बात की कि दो क्लास लगेगा इसको समझने में. तो आज मैंने दो वेराइटी को चुना है. वहां ए लिखा है और यहाँ बी लिखा है.
इन दोनों वेराइटी को आपको समझना है कि कैसे क्या है ये। तो पहले हम लोग एग्जांपल्स वर्कड आउट को देखते हैं। शी इज टू शाई टू आस्क फॉर हेल्प। ये है आपका क्वेश्चन और आपको इसका क्या करना, आंसर ढूंढना है कि कैसे इसको हम बनाएंगे। तो पहले कई छात्रों को ये लगता होगा सर आखिर इंग्लिश में तो हम बोल दिए कि शी इज टू शाई टू आस्क फॉर हेल्प, क्या मतलब हुआ, 2/2 लगा हुआ, इसका मतलब क्या होता है। तो देखिए T-O-O-2 का नॉर्मल मतलब इतना उतना के सेंस में होता है या बहुत के सेंस में होता है। साधारण माने एक दिमाग में इस चीज को रखने के लिए साधारण तौर पर इसको आप समझ लो कि T-O-O-2 रहे या TO2 रहे। फिर से मैं दोहराऊं, T-O-O-2 रहे और TO2 रहे, तो ये 2 की हिंदी होगी इतना। तो और क्या, इसका अर्थ भी निगेटिव होता है, ये कभी पॉजिटिव में नहीं आएगा। सकता है सकते हैं या सका सके सकी। तो प्रेजेंट में जब रहेगा क्वेश्चन तो सकता है सकते हैं, अब पास्ट में अगर क्वेश्चन रहेगा तो सका सके। जैसे जान करके मैंने यहाँ पर प्रेजेंट वाला क्वेश्चन भी लिया और पास्ट वाला, ताकि मैं आपको समझा पाऊं या आप खुद समझ पाओ कि क्या चीजें हैं इसका। तो देखते हैं, शी इज टू शाई टू आस्क फॉर हेल्प। शाई को हिंदी में हम लोग शर्मीला या शर्मीली कहते हैं। वह इतनी शर्मीली है, आस्क फॉर हेल्प। आस्क फॉर मतलब आस्क फॉर फ्रेज है जिसकी हिंदी होती है मांगना यानी डिमांड करना। तो वह इतनी शर्मीली, और जैसा मैंने कहा इसकी हिंदी आप सकता है सकते हैं में करोगे और निगेटिव यानी नहीं सकता है नहीं। तो शी कैन नॉट आस्क फॉर हेल्प, इसकी हिंदी ये हुई वह मदद नहीं मांग सकती है। यानी अगर मैंने स्पोकन में आपसे कहा कि आई एम टू बिजी टू गो, तो आप समझ लो कि सर कह रहे हैं मैं इतना व्यस्त हूं कि मैं जा नहीं सकता हूं। या फिर आई वॉज टू बिजी टू गो, वॉज जैसे लगा तो हमने क्या कहा थोड़ी देर पहले, वॉज वर यानी पास्ट में रहेगा तो सका सके उसका हिंदी रूपांतरण करोगे। तो आई वॉज टू बिजी टू गो, तो हिंदी क्या हुई, मैं इतना व्यस्त था कि मैं जा नहीं सका, ये होगा। तो सी इज, एक बार फिर से इसकी हिंदी क्या हुई, सी इज टू शाई टू आस्क फॉर हेल्प। वह इतनी शर्मीली है कि वह मदद मांग नहीं सकती। आस्क फॉर की हिंदी मैं फिर दोहरा दूं, मांगना होता है। तो सी इज टू शाई टू आस्क फॉर हेल्प, वह इतनी शर्मीली है कि वह मदद नहीं मांग। अब है कि हमें इसको बनाना है, माने बदलना है, रिमूव करना है। किसको रिमूव करना है, T-O-O-2 को हटाना है। कैसे बनाएंगे, आइए हम लोग स्ट्रक्चर को देखते हैं। तो क्या है, पहले क्या लिखा है, सब्जेक्ट लिखो। तो क्वेश्चन में आ जाते हैं। क्वेश्चन में सब्जेक्ट क्या है, सी है, तो हमने लिखा सी। फिर क्या लिखो, हेल्पिंग वर्ब लिखो। हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज आर एम वॉज वर, यही रहेगा हेल्पिंग वर्ब। तो हमने क्या लिखा, इज, सी इज। फिर क्या लिखने को कहा गया, सो लिखो, लिख लिया सो। फिर क्या लिखना है, ये एडीजे क्या है, फुल फॉर्म इसका क्या होगा, एडजेक्टिव, विशेषण। तो कहिएगा सर मैं फंस जाऊंगा या फंस जाऊंगी एग्जाम में, कैसे पहचानूंगा या पहचानूंगी कि ये एडजेक्टिव है। तो मैं एक स्मॉल ट्रिक आपको समझा रहा हूं। T-O-O-2 के बाद का जो वर्ड है वही है एडजेक्टिव। T-O-O-2 के जस्ट बाद, यहाँ T-O-O-2 के बाद क्या था, साई, तो क्या लिख दिए, ये एडजेक्टिव। तो फिर से आते हैं, सी लिखे, इज लिखे, सो लिखे, एडजेक्टिव साई हुआ, साई लिखे। फिर क्या लगा, दैट। अब यहां देखेंगे आप क्या लिखा हो, प्रोनाउन फॉर्म ऑफ सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का कौन सा रूप, प्रोनाउन रूप। तो सब्जेक्ट क्या था, सी, सी है, तो सी क्या होता है, नाउन की प्रोनाउन। प्रोनाउन होता है, आप में से कई को पता है, लेकिन कुछ लोगों को दिक्कत है, मुझे मालूम है। किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। जैसे राहुल, रवि, रीता, पटना, दिल्ली, है ना, गाय, घोड़ा, बच्चा, बच्ची, ये सब क्या है, नाउन है। अब प्रोनाउन क्या हुआ, जो नाउन के बदले आए।
राहुल को राहुल ना बोल करके क्या बोलते हैं? ही, यानी कोई एक लड़का है। रीता को रीता ना बोल करके क्या बोलते हैं? सी। आपका कुछ भी नाम है, अमित सुमित कुछ भी नाम है, तो अमित ना बोल करके मैं आपको क्या कहता हूं? यू। मेरा कुछ भी नाम है तो मैं अपना नाम ना लेकर के क्या कहता हूं? आई। तो किसी आदमी के नाम के बदले या जगह के या वस्तु के नाम के बदले जो शब्द आता है वही सर्वनाम है, प्रोनाउन। तो ही, सी, इट, दिस। तो कहिएगा सर यहाँ तो सी है ही, तब यहाँ आपने स्ट्रक्चर में लिख दिया प्रोनाउन फॉर्म ऑफ सब्जेक्ट। तो ध्यान से सुनिए, अगर सब्जेक्ट में पहले से ही, सी, इट, दिस है तो उसको कुछ नहीं करना, जो है वही लिखना है। हाँ, अगर वो नाउन में है तब उसको नाउन से, जैसे राहुल है तो राहुल का ही करेंगे, रीता है तो रीता का सी कर देंगे, जो उसके बदले नाउन प्रोनाउन आना चाहिए। बॉयज है, बहुत सारे लड़के हैं तो बॉयज हो गया बहुत सारे, यानी दे। गर्ल्स है यानी प्लूरल में कोई भी चीज रहेगा उसका दे। कोई निर्जीव चीज है उसके लिए प्रोनाउन क्या हो जाएगा? इट। तो एक लड़का है तो ही, एक लड़की है तो सी, बहुत सारे लड़के लड़की या कोई भी चीज बहुत सारा में है तो दे, एक चीज निर्जीव है तो उसके लिए इट लेंगे। यही 3-4 चीजों को हम लोग जानते हैं जिसको हमको प्रोनाउन मानेंगे। तो अगर वो पहले से ही सी, इट, दिस या दे है तो उसके लिए कुछ नहीं, वो है तो वही उतारते, जैसे यहां हमने किया। तो देखते हैं, सी इज सो साई दैट के बाद क्या लिखना था? प्रोनाउन लिखना था, लेकिन सी तो सी ही है, प्रोनाउन ही है, तो लिख दिए सी। फिर देखेंगे यहाँ क्या करना है? कैन नॉट या कुड नॉट। फिर आप पूछोगे हमसे, सर आपने लिखा है कैन नॉट ऑब्लिक कुड नॉट, यानी ऑब्लिक मतलब जान रहे अथवा, यानी कि या तो हम लोग कैन नॉट लगा सकते हैं या तो कुड नॉट लगा सकते हैं। तो हम लोग कब सर कैन नॉट लगाएंगे और कब कुड नॉट लगा देंगे? माय डियर स्टूडेंट्स, लेट मी टेल यू, व्हेन योर सेंटेंस इज इन प्रेजेंट यू हैव टू यूज कैन नॉट, एंड व्हेन योर सेंटेंस इज इन पास्ट यू हैव टू यूज कुड नॉट। हाउ विल यू रिकॉग्नाइज दैट योर सेंटेंस इज इन प्रेजेंट? इफ द हेल्पिंग वर्ब इज आर एम, अगर सहायक क्रिया इज आर एम लगा हुआ है तो वो प्रेजेंट में है। एंड इफ योर हेल्पिंग वर्ब इज वाज वर, अगर आपकी सहायक क्रिया क्या है? वाज वर है, तो वो क्या है? पास्ट है। तो मैं फिर से दोहरा दूं, अगर सहायक क्रिया सेंटेंस में इज आर एम है तो कैन नॉट लिखेंगे, और अगर सेंटेंस में सहायक क्रिया वाज वर है तो क्या लगाएंगे? कुड नॉट। तो यहाँ पर क्या था? यहाँ सहायक क्रिया क्या थी? इज थी ना, तो इसलिए हमने यहाँ सी के साथ क्या लिखा? कैन नॉट। फिर कहते हैं वर्ब लिखो, तो वर्ब यहाँ क्या था? आस्क था, आस्क। लास्ट में क्या लिखा? रिमेनिंग पार्ट। रिमेनिंग को हिंदी में कहते हैं बचा हुआ। रिमेनिंग पार्ट की हिंदी क्या हुई? बचा हुआ हिस्सा, बचा हुआ भाग। तो बचा हुआ भाग क्या था? आस्क फॉर हेल्प। तो फिर से देखते हैं कैसे बनाया हमने। पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, लिखा सी, फिर लिखना है हेल्पिंग वर्ब, क्या था? हेल्पिंग वर्ब इज, तो लिख लिए इज। अब तू गायब हो गई, तू को हटा दिए, टू के जगह पर क्या लिखे? सो, सी इज सो। फिर क्या लिखे? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव कैसे पहचाने हम? तो हमने आपको क्या कहा? T-O-O-2 के बाद वाला जो वर्ड है वही एडजेक्टिव है। तो क्या लिखा? साय, सी इज सो साय। फिर क्या? जो स्ट्रक्चर कहता है वही लिख, दैट लगाए। फिर कहा कि प्रोनाउन फॉर्म ऑफ सब्जेक्ट, तो अगर सब्जेक्ट प्रोनाउन में है तो वही लिख दो, अगर नाउन में है तो नाउन, अगर राहुल है तो राहुल का ही, रवि है तो रवि का ही, रीता है तो सी, बहुत सारे लोग हैं या बहुत सारी चीजें हैं तो दे। तो यहाँ पर सी लिखे। फिर हमको चुनना था कैन नॉट या कुड नॉट में से कोई एक। तो हमने जैसा कहा क्वेश्चन में अगर इज आर एम है तो कैन नॉट, क्वेश्चन में अगर वाज वर है तो कुड नॉट। तो यहाँ क्वेश्चन में क्या था? इज था, इसलिए क्या लिखे? कैन नॉट। फिर वर्ब लिख दिए आस्क, बचा क्या? फॉर हेल्प, फॉर हेल्प। यही तो बड़ा आराम से बना लिया। दूसरा देखते, राहुल वॉज टू बिजी टू गो देयर। आते हैं स्ट्रक्चर को देखते हुए। तो राहुल, हेल्पिंग वर्ब क्या है? वॉज, फिर लिख दिए सो। एडजेक्टिव क्या था? टू के बाद क्या है? बिजी, तो बिजी, दैट। अब यहाँ क्या लिखा है? प्रोनाउन फॉर्म ऑफ सब्जेक्ट। प्रोनाउन फॉर्म ऑफ सब्जेक्ट, तो यहाँ सब्जेक्ट क्या है? राहुल, तो राहुल के बदले क्या लोगे? ही, तो ही। फिर कहते हैं कैन नॉट या कुड नॉट में से एक लगाओ। तो यहाँ क्वेश्चन में क्या है? वाज है,
और हमने क्या कहा था क्वेश्चन में, अगर वाज वर रहेगा तो कुड नॉट लिखिएगा। तो ही कुड नॉट, फिर क्रिया क्या है गो, तो लिख दिए गो। जो बचा रह गया, बचा क्या रह गया है देयर, तो देयर बन गया। राहुल वाज सो बिजी दैट ही कुड नॉट गो देयर। हिंदी क्या हुई, राहुल इतना व्यस्त था कि वह वहां जा नहीं सका। अब इसका दूसरा तरीका भी रिमूवल ऑफ टू में दूसरा सेक्शन होता है, जिसमें कि एक ही बार टू, आप ऊपर वाला और नीचे वाले में अंतर देखिए। इसमें क्या था, एक ये टू था और एक ये टू था, लेकिन नीचे वाला देखिए सॉरी, यहां क्या है, एक ही बार टू है। टी इज टू हॉट, TOO2 ही है, TO2 दोबारा नहीं है। टी इज टू हॉट। दूसरा भी देखिए, रवि वॉज टू टॉकेटिव। इसमें इसका आपको पहचान, दोनों का पहचान वेरी किया ना, अलग हुआ ना। पहले वाला में 2 बार टू, एक बार TOO2 और एक बार TO2, इसमें केवल 2 TOO। अब इसको कैसे बनाएंगे वो देखते हैं। चलिए आते हैं स्ट्रक्चर को देखते हुए। पहले कहा गया सब्जेक्ट लिखो, लिख लिया टी, फिर क्या लिखो, हेल्पिंग वर्ब लिख लिया इज, फिर क्या, कंपैरेटिव डिग्री। आपको मैं बताऊं, डिग्री एडजेक्टिव से ही बनती है। जैसे टॉल मतलब क्या होता है, लंबा। उससे भी ज्यादा लंबा को क्या बोलोगे, टॉलर। और सबसे ज्यादा लंबा को क्या बोलोगे, टॉलेस्ट। तो राहुल इज ए बॉय में कहीं एडजेक्टिव है, राहुल एक लड़का है मैं एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव मतलब समझते, जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता होता है। तो राहुल एक लड़का है, इसमें क्या विशेषता हुई, बहुत सारे लड़के हैं, इसमें कोई विशेषता। लेकिन अब मैं दूसरा सेंटेंस बोल रहा हूं, राहुल इज ए टॉल बॉय, राहुल एक लंबा लड़का है, इसमें क्या विशेषता है, लंबा। हाँ, तो टॉल एडजेक्टिव है, तो टॉल से ही क्या बन गया, टॉलर और टॉलेस्ट। तो एडजेक्टिव मूल रूप में पॉजिटिव कहलाता है, उसका कॉम्परेटिव क्या होगा, टॉलर, और सुपरलेटिव क्या होगा, टॉलेस्ट। तो एडजेक्टिव पहचानने का तरीका थोड़ी देर पहले ऊपर में मैंने समझाया था, TOO2 के बाद जो है वही एडजेक्टिव है, उसी का कॉम्परेटिव करो। तो टी इज टू हॉट, तो टी इज कॉम्परेटिव फॉर्म लिखना है, हॉट का कॉम्परेटिव क्या होगा, हॉटर। फिर क्या लगा है, देन कहा प्रोनाउन फॉर्म ऑफ सब्जेक्ट। तो प्रोनाउन फॉर्म, यहां सब्जेक्ट क्या था, टी, तो टी का प्रोनाउन क्या होता है, इट निर्जीव है, तो टी इज हॉटर देन इट। और लास्ट में कहा गया, या तो शुड बी लिखो या शुड हैव बीन लिखो। अब आप कहोगे सर कहां शुड बी और कहां शुड हैव बीन, तो फिर ऊपर वाला लफड़ा फिर आ गया कि जब क्वेश्चन इजारम से हो तो शुड बी, और जब क्वेश्चन में वाज वर यानी पास्ट में हो तो शुड हैव बीन। तो यहां क्या था कि इज टू हॉट, इज है ना, तो टी इज, फिर से आते हैं टी इज, कंपैरेटिव हो गया हॉट का हॉटर, फिर लगा दिए देन प्रोनाउन फॉर्म ऑफ सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट टी था, तो निर्जीव का प्रोनाउन इट होगा, तो इट लिख दिए। लास्ट में कहा गया शुड बी लिखिए या शुड हैव बीन। तो क्या मैंने आपको कहा, इजारम रहेगा क्वेश्चन में तो शुड बी, और वाज वर रहेगा तो शुड हैव बीन। तो यहाँ हमने क्या किया, शुड बी, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में इज था। अब आता है दूसरा क्वेश्चन, जान करके मैं बदल देता हूं ताकि आपको दोनों समझ में आया अच्छा ढंग से। रवि वाज टू टॉकेटिव। टॉकेटिव को हम लोग हिंदी में कहते हैं वाचाल, जो बहुत बक 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 करता रहता है, खूब बोलता है, मैंने बातुनी, खूब बोलने वाले लोगों को टॉकेटिव कहते हैं हिंदी में, सॉरी इंग्लिश में। तो रवि वाज टू टॉकेटिव। आते हैं स्ट्रक्चर को, सब्जेक्ट पहले लिखना है रवि, फिर हेल्पिंग वर्ब वाज, कॉम्परेटिव करना है, तो कॉम्परेटिव किसका करना है, टॉकेटिव। तो टॉकेटिव का कॉम्परेटिव होता है मोर टॉकेटिव, तो रवि वाज मोर टॉकेटिव। फिर क्या लगा देना है, देन प्रोनाउन फॉर्म ऑफ सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है, रवि, तो रवि का प्रोनाउन क्या हो जाएगा, ही। अब देखिए क्वेश्चन में यहाँ क्या है, वाज, और हमने क्या आपको समझाया, अगर वाज वर रहेगा तो शुड हैव बीन करेंगे, और इजारम रहेगा तो शुड बी करेंगे। तो यहाँ क्या था क्वेश्चन में, रवि वाज, तो रवि वाज मोर टॉकेटिव देन ही और शुड have been। बस इतना सही। My dear students, I hope that you have understood the complete lecture, and if you could not, tell me frankly through your comment, or either through the telephonic conversations, whatever be the medium, whatever medium suits you, tell me, inform me, sir, I have some problems in understanding this lecture, and I shall try my level best to
clear your doubts, your problems as much as I can. Thanks all of you for watching my video.